Hello students, I am Vineet Suluja, your physics mentor. Today we will be discussing the questions of practice set number 1 of electric charges and fields. So coming to the question number 1, the statement is on the board. A charge of 3 microcoulomb minus 5 microcoulomb and 20 microcoulomb are enclosed in a container. What is the net charge inside the container? So according to the additive property of the charges, the net charge inside a container will be the algebraic sum of all charges. So q net is sum of q1 plus q2 plus q3, and as per our question the value of q1, q2 and q3 is given. The value of q1 is 3 microcoulomb. Micro you all know, 10 raised to the power minus 6. q2 is minus 5 microcoulomb and plus 20 microcoulomb. So putting these three values in the above formula, so the net charge will become 3 microcoulomb plus is minus 5 microcoulomb plus 20 microcoulomb. 20 plus 3 23 minus 5 18. So net charge inside the container will be 18 microcoulomb. So now coming to the question number 2, the statement is on your board. What does Q1 plus Q2 is equal to 0 signifies in electrostatics? So as per the question, Q1 plus Q2 is equal to 0. तो बेटा ये कब 0 हो सकता है? ये तब 0 हो सकता है तो जब Q1 और Q2 का पोलैरिटी अपोजिट होगा। अगर ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो कभी भी ऐड होने के बाद तो 0 नहीं आएगा। अगर ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव है तो भी ऐड होने के बाद कभी भी 0 नहीं आएगा। इट मींस द पोलैरिटी शुड बी अपोजिट, वन हैज टू बी पॉजिटिव एंड अनदर हैज टू बी नेगेटिव। पोलैरिटी तो अपोजिट होना ही चाहिए, इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि लेट अस से दिस इज +4 सो इट शुड बी -4, तभी ये 0 आ सकता है। So Q1 plus Q2 is equal to 0 signifies us that Q1 is equal in magnitude and opposite in polarity, यानी कि जो Q1 और Q2 है वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं बट पोलैरिटी क्या है? अपोजिट है। So this is your question number 2. Now coming to the question number 3, the statement is on your board. 2-point charges Q1 plus Q2 are such that the product is greater than 0. What is the nature of forces between them? Right. So as per the question, the Q1 into Q2 is greater than 0. बेटा greater than 0 का मतलब क्या है? It means the right hand side is positive. तो पॉजिटिव हमारा कब आएगा? पॉजिटिव हमारा आएगा जब Q1 और Q2 क्या हो? दोनों पॉजिटिव हो। पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आंसर विल बी पॉजिटिव, या फिर Q1 Q2 दोनों ही हमारे नेगेटिव हो। नेगेटिव इंटू नेगेटिव again comes out to be positive. In case if Q1 is negative and Q2 is positive, तो नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर comes out to be negative. और अगर Q1 जो है पॉजिटिव हुआ, Q2 नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव again आंसर will be comes to be negative. It means the Q1 and Q2 is having the same polarity. अगर Q1 और Q2 का सेम पोलैरिटी नहीं होगा तो आंसर हमारा ग्रेटर देन 0 नहीं आएगा। और अगर Q1 और Q2 का सेम पोलैरिटी है, एज पर द बेसिक नॉलेज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेम चार्जेस लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर। सो व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट काइंड ऑफ फोर्स विल बी देयर? द नेचर ऑफ फोर्स विल बी रिपल्सिव। कौन सा फोर्स होगा हमारा? रिपल्सिव होगा। सो दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। Now coming to the fourth question. Fourth is a multiple choice question. The statement is on the board. An ebonite rod is rubbed with fur and a glass rod is rubbed with silk cloth are brought nearer to each other. Then हमने क्या किया बेटा? एक ebonite rod लिया है, ebonite rod, और इसको बेटा हमने किससे रब किया है?
इसको हमने रब किया है, अगर आपको याद हो थोड़ा सा, फर से, वूल से या हम कैट स्किन से रब करते थे। और एक हमने लिया बेटा ग्लास रोड को, और ग्लास रोड को हमने किससे रब किया है? ग्लास रोड को हमने सिल्क से रब किया है। If you recall, the glass rod when rubbed with the silk will acquire the positive charge, and ebonite rod when rubbed with the fur will acquire negative charge. As per the question, now ebonite rod and glass rod are brought closer together. अब हमने ebonite rod और glass rod को क्या लाए हैं? पास लाए हैं। As they both having the opposite polarity, तो जब मैं इनको पास लाऊंगा तो ये क्या करेंगे? कौन सी काइंड ऑफ फोर्सेस हमारी होंगी इसके बीच में? अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगी। So if you will go through the options available, A is repel each other, that is incorrect. B is attract each other, that is definitely correct, because they are having the opposite polarity. Nothing will happen. दोनों के ऊपर चार्जेस हैं बेटा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस तो डेफिनेटली होंगी. They will get heated up. हीट का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. So your B is the correct answer. Now coming to the question number 5. Let me rub the board. The statement of question number 5 is in your board. Electric charges between two bodies can be produced by sticking, rubbing, oiling and passing alternating current. If you will recall in the beginning when we have just started this electrostatics chapters, we have discussed three methods of charging. What are those methods? Frictional method, conduction method and induction method. तो अगर आप फ्रिक्शन की बात करें, फ्रिक्शन में क्या होता था? दो बॉडीज में आपस में रबिंग होता था. So as per the options available, so answer will be B, rubbing. तो फिफ्थ क्वेश्चन का बेटा जो आंसर होगा that is B. Now coming to the sixth question, the statement is on your board. If 10 raised to the power 9 electron moves out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on another body? Okay, so we all know the quantization of the charge, that the total charge in the body will be the integral multiple of the charge on the electron. Plus minus will be there if the body is having the positive charge, so here it will be positive, and if the body is having the negative charge, then here it comes negative. E is the charge on the electron, it is 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So as per the question, the charge which has to be acquired is 1 coulomb. So firstly we will find the number of electrons and we will put the value of 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So we will just find the value of n, so it will become 1 divided by 1.6 into 10 raised to the power minus 19. So it will go upside, become positive, and 1 0 is this is also upside, so it will become n is equal to 10 upon 16 into 10 raised to the power positive 19, because it now goes on the upside. So 9 इसको हम simplify कर लेते हैं, we can write it like 100 upon 16 into 10 raised to the power 10 बेटा कैरी हो गया. So here we have left with 10 raised to the power 18. इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20. 25 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा आपके पास? तो it will be 6.25 into 10 raised to the power 18. This is the number of electron. तो एक कूलम का चार्ज लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे? It is 6.25 into 10 raised to the power 18. So now we have to check the time. So as per the question, 10 raised to the power 9 electrons takes time is equal to 1 second. So 1 electron will take, time is equal to 1 upon 10 raised to the power 9 seconds. And in order to have 1 coulomb, we have to transfer 6.25 into 10 raised to the power 18 electron. So 6.25 into 10 raised to the power 18 electrons will take time 1 upon 10 raised to the power 9 into 6.25 into 10 raised to the power 18. When this 9 will go on the upper side, it will become minus, plus 18 minus 9, it will become plus 9. So our answer will be 6.25 into 10 raised to the power 18 minus 9. It is 6.25 into 10 raised to the power 9 seconds. So in order to have the charge of 1 coulomb, the
time required will be 6.25 into 10 raised to the power 9 seconds. Now coming to question number 7, the statement is on the board. How much positive and negative charge in a cup of water? एक कप ऑफ वाटर के अंदर कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है? बेटा जब हम पानी पीते हैं तो हमें करंट तो नहीं लगता. इट मींस कि नेट चार्ज ऑन द वाटर क्या है? जीरो है. बिकॉज अगर पानी के अंदर कोई नेट चार्ज होता तो जब मैं पानी पीता, व्हेनेवर आई ड्रिंक ए वाटर, सो मेरे बॉडी के अंदर क्या आता? चार्ज आता, और वो चार्ज ग्राउंडिंग की हेल्प से अगर ग्राउंड होता तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगता. बट इलेक्ट्रिक शॉक मुझे नहीं लग रहा है. इट मींस नेट चार्ज ऑन द वाटर इज जीरो, बट इट डजंट मीन इट डजंट कंटेन द नेगेटिव चार्ज. जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे पास नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो. अगर मैं किसी तरह नेगेटिव चार्ज फाइंड आउट कर लूं, इक्वल अमाउंट ही बेटा मेरा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो अब अगर पानी का जो हम कप बड़ा साइज का कंसिडर कर लें तो उसमें ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा. ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर आएगा तो उसके अंदर ज्यादा एटम्स होंगे. एटम्स हमारे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होंगे. न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, राइट. और अगर छोटा साइज का कप लेंगे तो हमारा चार्ज भी कम हो जाएगा. तो हम यहाँ पे अजम्पशन लेंगे कि जो हमारे कप के अंदर वाटर है वो कितना आ रहा है? 250 ग्राम हमारा जो है वाटर आ रहा है. तो कप अजम्पशन है बेटा, cup contains 250 grams of H2O. तो 250 ग्राम ऑफ H2O जो है हमारा पानी है कप के अंदर. अब बेटा H2O का आप मुझे, अगर मैं यहां से H2O का एटॉमिक मास निकालूं बेटा, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा? 16. हाइड्रोजन का कितना है? 1. हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं तो 2 इंटू में 1 2 प्लस में 16, तो 18 ग्राम जो है मेरा इसका मोलर मास हो गया. मोलर मास. तो मोलर मास हमारा H2O का कितना हुआ बेटा? 18. मोलर मास का मतलब क्या होता है कि 18 ग्राम्स के अंदर 18 ग्राम्स किसका मास है? 18 ग्राम्स इज द मोलर मास, मींस 1 मोल का मास है. तो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स 18 ग्राम क्या था बेटा? मोलर मास. तो मोलर मास किसका होता है? 1 मोल का. 1 मोल के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम होते हैं? एवोगैड्रो नंबर. सो 18 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O होंगे? That is 6.022 into में 10 raised to the power 23. That is the Avogadro number, right? तो 1 ग्राम्स के अंदर 1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितने हो जाएंगे बेटा एटम्स? 6.022 into में 10 raised to the power 23 डिवाइडेड बाय 18. और अब मेरे पास कितने ग्राम वाटर है? मैंने तो 250 ग्राम्स कंसीडर किया है, तो 250 ग्राम के अंदर कितने बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे? So this is 6.022 into में 10 raised to the power 23 अपॉन में 18 into में 250 ग्राम्स. तो मेरे पास ये क्या आ गई? ये नंबर ऑफ एटम्स आ गए. तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स H2O है तो मॉलिक्यूल भी हम कंसीडर कर सकते हैं. सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250 ग्राम ऑफ H2O. तो आप लिख सकते हैं, इसको आप सोल्व कर सकते हैं. अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो बेटा हमारे पास आएगा 6.022 इंटू में 25 डिवाइडेड बाय में 18, सो इट विल बिकम 8.36 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 23. 80 ये वाला हो गया बेटा 24. मैंने 6.022 को 25 से मल्टीप्लाई किया और 18 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया था? 8.36, और ये 23 और ये वाला जीरो मेरे पास क्या हो गया? 24 हो गया. तो इतने नंबर ऑफ मेरे पास मॉलिक्यूल्स आ गए 250 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर. अगर अब मैं चेक करूं कि 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं,
बेटा इलेक्ट्रॉन्स हमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें कैसे पता चलते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चलते हैं एटॉमिक नंबर से। तो H2O को अगर मैं देखता हूं, तो H2O को अगर मैं देखता हूं, H2O, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अच्छा, हाइड्रोजन का क्या है? हाइड्रोजन का है 1, तो इनटू में 2, क्योंकि 2 हमारे एटम्स थे। तो H2O के अंदर कितने हमारे जो है इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? तो 1 molecule of H2O contains how much number of electrons? 10 number of electrons। तो आपके पास अब 250 ग्राम के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? आपके पास है 8.36। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर बेटा 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 8.36 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 24 के अंदर कितने होंगे? सो 8.36 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 24 molecules of H2O contains 10 इलेक्ट्रॉन्स था बेटा। तो मेरे पास आ जाएगा 10 इंटू में 8.36 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 24। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम ऑफ H2O कितना है बेटा मेरे पास? पावर हमारा 1 ऐड ऑन हो जाएगा, 8.36 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 25। सो 250 ग्राम्स के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए? 8.36 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 25। 1 इलेक्ट्रॉन इज हैविंग चार्ज, कितना चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन के ऊपर? इट इज 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -19, नेगेटिव का होता है। तो अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? That is 8.36 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 25। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 1.6 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -19 इंटू में 8.36 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 25। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.6 इंटू में 8.36 इंटू में, अगर पावर्स को चेक करोगे बेटा, यहाँ पर 25 है और यहाँ पर माइनस का 19 है, तो आपके पास कितना आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। और 1.6 को 8.36 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8.36 इंटू में 1.6 दैट इज 13.37। तो 13.37 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 6 कूलम। ये आपके पास क्या आया? टोटल नेगेटिव चार्ज, है ना। और आपके पास पॉजिटिव चार्ज कितना होगा बेटा? जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही आपके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज will be plus 13.737 into 10 raised to the power 6 कूलम। सो ये दो हमारे क्या रहेंगे बेटा? आंसर रहेंगे। एक बार फिर से इसको जो है ब्रीफ लेंगे हम कि हमने क्या पूरे क्वेश्चन के अंदर बेटा किया है। सबसे पहले हमने 250 ग्राम ऑफ वाटर एज्यूम किया, फिर हमने मोलर मास 18 ग्राम से हमने निकाला कि 18 ग्राम्स कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारा जो है मास है, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। तो 250 ग्राम्स मेरे जितने मॉलिक्यूल्स थे वो मैंने निकाले, राइट। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास आ गए। 18 ग्राम के अंदर मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स थे? एवोगैड्रो नंबर से आ गया। 1 ग्राम के अंदर निकाल लिया, फिर मैंने 250 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मेरे पास आ गए इससे 250 ग्राम के अंदर। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन थे? 10 थे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास 250 ग्राम में आए थे, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिया मल्टीप्लाई कर कर। उसके बाद मैंने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 into 10 raised to the power -19 था, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज हमारा जो रहेगा वो मैंने फाइंड आउट किया, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ proceeding to question number 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे बेटा हम प्रोसीड करते हैं। Statement of the question is on your board. Can a body have 2.8 into 10 raised to the power -18 coulomb charge? Justify। तो हमें चेक करना है बेटा क्या किसी बॉडी के ऊपर 2.8
8 इंटू में 10 रेज टू द पावर -18 कूलम चार्ज हो सकता है? तो डेफिनेटली नहीं हो सकता। कैसे पता चलेगा? मुझे पता है Q इज इक्वल टू NE वेयर N शुड बी द इंटीग्रल मल्टीपल। तो Q का वैल्यू रखा 2.8 इंटू में 10 रेज टू द पावर -18 इज इक्वल टू N 1.6 इंटू में 10 रेज टू द पावर -18। फ्रॉम दिस इट विल गेट कैंसिल्ड आउट। N कम्स आउट टू बी 2.8 अपॉन में 1.6, डेसिमल से बेटा डेसिमल गया, that is 28 अपॉन में 16, है ना। तो इसको आप किस पे 2 पे पहले कर लें, 8 आ जाएगा और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 पे कैंसिल कर लें, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो 7/4 आगे इसको सोल्व करूं तो फ्रैक्शन आ जाएगा, एंड n कैन नेवर बी इन द फ्रैक्शन। तो इट मींस जो ये चार्ज है हमारा ये एग्जिस्ट नहीं करता है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द स्टेटमेंट इज ऑन योर बोर्ड। A copper atom consists of copper nucleus surrounded by 29 electron. It means an atom of copper contains 29 electron. The atomic weight of copper is 63.5 gram per mole. Molar mass बेटा given है हमारे पास 63.5 gram, 1 mole का mass है। Let us now take 2 pieces of copper, each weighing 10 gram. हमारे पास 2 copper के pieces हैं और दोनों का ही जो हमारा mass है या weight है हमारा 10 gram है। And transfer 1 electron from one piece to another for every 1000 atom। 1000 atoms के पीछे मैं एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करूंगा। तो 2000 होंगे तो कितने करूंगा? 2 करूंगा। 3000 होंगे तो 3 करूंगा। 10000 होंगे तो 10 करूंगा। देन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज। तो 10 ग्राम्स बेटा दोनों हैं, एक से दूसरे पे हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे ये फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करूंगा? 1000 इलेक्ट्रॉन्स, 1000 एटम्स के लिए एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूंगा, उसके अकॉर्डिंग मैं कैलकुलेट कर लूंगा। लेट अस से फॉर एन अजम्पशन 10000 हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, क्योंकि 1000 के पीछे मैं एक कर रहा हूं, तो मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकाल सकता हूं, राइट। तो हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम। तो 10 ग्राम के अंदर बेटा मुझे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो इसका जो है मोलर मास गिवन है 63.5 ग्राम्स हमारा मोलर मास है। किसका? 1 मोल का। तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया? 63.5 ग्राम्स कंटेन्स एटम। कितने एटम कंटेन करेगा? एवोगैड्रो नंबर, इट इज 6.022 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 23। तो 1 ग्राम कितने करेगा? 1 ग्राम आप निकाल सकते हैं, 6.022 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय में 63.5। तो आपको कितने का निकालना है? आपको 10 ग्राम्स का बेटा फाइंड आउट करना है। तो 10 ग्राम्स हो जाएगा 6.022 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 23 अपॉन में 63.5 इंटू में 10। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, डेट इज 6022 अपॉन में 635, और ये हमारा हो गया 10 रेज़ टू द पावर 24, और ये 3 जीरोस बेटा नीचे आई डेसिमल की, और इस वाले डेसिमल का ये जीरो ऊपर गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, तो ये ऊपर कैंसिल हो जाएगा। तो डेट इज 6022 अपॉन में 635 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 22, इतना आपके पास आ गया। अब हम क्या करते हैं? 6022 को 635 से डिवाइड करते हैं। तो लेट मी चेक द आंसर। तो 6022 डिवाइडेड बाय 635, दैट इज 9.48 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 22। तो ये मेरे पास क्या निकल गया बेटा? ये मेरे पास निकले हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास निकल गए, है ना। ये टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल गए, मेंशन कर देते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। अब फॉर 1000 एटम्स we transfer number of electron is equal to 1। तो 1 एटम के लिए कितना जाएगा? 1 अपॉन में 1000, राइट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स बेटा कितने हैं? इट इज 9.48 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर 22। इतने के लिए कितना जाएगा?
1000 इंटू में 9.48 इंटू में 10⁻²²। इसको सोल्व करेंगे तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे, दैट इज 9.48 इंटू में 10⁻19। इतने इलेक्ट्रॉन्स बेटा हमने ट्रांसफर किया है ना। तो अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर charge is 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। तो इसके लिए कितना होगा बेटा, 9.48 इंटू में 10⁻+19 के लिए कितना होगा, 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 इंटू में 9.48 इंटू में 10⁻+19। प्लस और माइनस है तो बेटा ये कैंसिल हो गए। तब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 9.48 इंटू में 1.6। तो 9.48 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.6 से, 9.48 इंटू में 1.6। सो योर आंसर इज 15.16। तो आपके पास टोटल चार्ज कितना एक्वायर हुआ, 15.16 कूलम। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो 15.12, तो approximation के अकॉर्डिंग ठीक है, 15.16 कूलम इज द चार्ज। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 10th। The statement is on the board. Is it possible for insulator to have charge justified? क्या इंसुलेटर के ऊपर चार्ज आ सकता है? इंसुलेटर का बेसिक डेफिनेशन क्या है? इंसुलेटर आर द सब्सटेंसेस which do not allow themselves to pass the charge, जो अपने अंदर से चार्जेस को पास नहीं करने देते हैं। It doesn't mean कि इंसुलेटर के ऊपर चार्ज नहीं आ सकता। Yes, insulator can be charged। आपने ग्लास रोड को रब किया था, ग्लास रोड was the इंसुलेटर। आप कोम को रब करते हैं हेयर से तो कोम चार्ज हो जाती है, तो डेट वाज द इंसुलेटर। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा यस इट इज पॉसिबल। तो जस्टिफिकेशन में आप बता सकते हैं कि इंसुलेटर जो है वो सब्सटेंस होते हैं जो चार्जेस को अलाउ नहीं करते हैं पास करने के लिए अपने अंदर से, बट दे कैन बी चार्ज। फॉर एग्जांपल व्हेन ग्लास रोड इज rubbed with the silk cloth, it acquires the positive charge, right? Coming to the question number 11, the statement is on your board. On charging by conduction, mass of the body increase, decrease, increase or decrease, none of these. Multiple choice question है। तो चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव चार्ज है इट मींस द इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, और अगर नेगेटिव चार्ज है इट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन्स कंटेन्स द मास, इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, कितना मास होता है, 9.1 इंटू में 10⁻⁻31 kg। तो अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो मास इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मास डिक्रीज होगा। सो योर करेक्ट आंसर इज सी, राइट। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, द question is again on your board. The metal knob of a gold leaf electroscope is touched with a positive charge rod. तो हमने जो gold leaf electroscope जो हमने किया था उसका वर्किंग आपको थोड़ा सा ध्यान होगा। तो gold leaf electroscope को हमने positive charge rod से जो है टच किया है। Now it is taken away, the leaves stay separated, fine, क्योंकि जब मैंने positive rod को टच कराया तो electroscope चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ने रिपेल किया तो दोनों गोल्ड लीव्स क्या हो गई, रिपेल हो गई, दे आर गेट सेपरेटेड। नाउ ए नोब, मेटल नोब इज टच्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। अब मैंने क्या किया, पहले पॉजिटिव चार्ज था, मैंने नेगेटिव चार्ज से किया। द सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द लीव्स, दोनों लीव्स के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगा, पहले पॉजिटिव चार्ज था, मैंने नेगेटिव चार्ज किया। तो ऑप्शन इज ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डी रिमेन सेम। तो आंसर इज डेफिनेटली डिक्रीजेस, क्योंकि अगर मैं सेम चार्ज को टच कराता तो दे विल गेट फर्दर डाइवर्स्ड, और जो है अगर मैं अपोजिट चार्ज को कनेक्ट करता हूं तो क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, स्टेटमेंट ऑन द बोर्ड। व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग? चार्जिंग का बेसिक कॉज क्या है, डेट इज द, आप कहें कि डेट इज द एडिशन और सब्ट्रैक्शन। डेट इज if you will add the electron, removal or addition of the electron is the cause of the charge. Last question, question number 14, statement board पर, the smallest charge is 1 coulomb, true or false? क्या हमारा smallest charge 1 coulomb है? No, smallest charge is the charge on the electron, that is 1.6 into 10⁻⁻⁻19 coulomb. So 1 coulomb हमारा smallest charge नहीं है।
So this completes your practice set number 1 of the electric charges and fields. आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे इस सभी के. इन केस आपको कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, राइट. सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.